اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے پیارے ویورز، آج کے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ یورک ایسڈ کیا ہے، اس کو ہم قدرتی طور پر کیا وہ طریقے ہیں جن سے دوائیوں کے بغیر، ایلوپیتھک کے بغیر گھر میں ہی قدرتی طور پر اس کا لیول اپنے جسم میں کم کر سکتے ہیں۔ جو یورک ایسڈ ہے وہ کچھ قسم کے کھانوں سے خصوصی طور پر بڑھتا ہے، جیسے کہ ہم جو گوشت کھاتے ہیں، گوشت جو بھی ہو، وہ چکن ہو یا گائے کا گوشت ہو یا بکرے کا۔ اگر کچھ لوگ شراب پیتے ہیں تو عام طور پر ان کا یورک ایسڈ جسم میں بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یورک ایسڈ جو ہے وہ جسم کے اپنے کچھ حصوں کی توڑ پھوڑ کے نتیجے میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات باہر سے جو ہم کچھ کھاتے ہیں اس کے نتیجے میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو جب بھی کسی کا یورک ایسڈ کا لیول 6.8 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑھا ہوا یورک ایسڈ ہے، یعنی ہائپر یوریسیمیا ہے۔ اور جب ہائپر ہیومن یوریسیمیا ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم اس بات کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ ہمارے مختلف جوڑوں میں یہ یورک ایسڈ جا کے بیٹھ جاتا ہے، ڈپوزٹ ہو جاتا ہے کرسٹل کی شکل میں۔ بڑا ہوا یورک ایسڈ جو ہے اس کو ہم ہائپر یوریسیمیا کہتے ہیں۔ اور جب کسی کے جسم میں یہ جا کر بیٹھتا ہے، جوڑوں میں ایک دفعہ یورک ایسڈ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے مختلف قسم کے اور مسائل بھی جنم لیتے ہیں، جس میں گردے کی پتھریاں بھی شامل ہیں۔ تو دو طریقوں سے یورک ایسڈ جسم میں بڑھ سکتا ہے۔ جب یورک ایسڈ جسم میں بڑھ جاتا ہے، ایک خاص مقدار کے بڑھنے کے بعد گردے اس کی صفائی کرتے ہیں، اس کو جسم سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ گردے ہمارے جسم کا ایک فلش سسٹم ہے۔ جب گردے یورک ایسڈ نکال نہ پائیں یا پھر ہم بہت زیادہ یورک ایسڈ والی چیزیں کھا لیں تو دونوں صورتوں میں یورک ایسڈ جسم میں بڑھ جاتا ہے اور ہمیں جوڑوں کی سوزش یا آرتھرائٹس یا گاؤنٹ یعنی گنٹھیا کی بیماری جنم لیتی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایک کر کے بات کریں گے کہ وہ کیا طریقے ہیں کہ ہم ایک قدرتی طور پر دوائیوں کے بغیر اس بیماری سے نجات حاصل کر سکیں۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں یورک ایسڈ جو ہے وہ باہر سے اندر زیادہ نہ جائے تو اس کے لیے بہترین ہے کہ آپ اپنے کھانوں پر نظر دوڑائیں۔ کچھ مخصوص قسم کے کھانے ہوتے ہیں جو وہ لوگ جن کے اندر یا تو یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہو یا پھر ان کو یہ ڈر ہو کہ ان کے اندر کہیں یورک ایسڈ بڑھ نہ جائے، ان کے کچھ مخصوص قسم کے کھانوں سے ذرا پرہیز کرنا چاہیے یا ان کی کم مقدار کھانی چاہیے۔ ناظرین، وہ کیا کھانے ہیں؟ مٹن ہے، بیف ہے یعنی گائے یا بکرے کا گوشت ہے، اور بعض اوقات ہمیں بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کلیجی کھانے کا۔ اس کے بعد ہم گردے، کپورے وغیرہ کھاتے ہیں، تو یعنی آرگن میٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ کم سے کم کھائیں۔ سی فوڈ یعنی مچھلیاں جس میں پھر سیل فش بھی شامل ہے، وہ کم سے کم کھائیں۔ اسی طرح سے دالیں یعنی دالیں، گوشت جو سی فوڈ یا چکن وغیرہ ہے، آپ کے جسم میں یورک ایسڈ کو بڑھاتا ہے۔ لیکن جو نئی اسٹڈیز ہوئی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جو سبزیاں ہوتی ہیں ان میں کم صلاحیت ہے کہ وہ آپ کے یورک ایسڈ کو بڑھائیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ یورک ایسڈ سے پریشان ہیں، اس بیماری سے پریشان ہیں، تو جن کھانوں کا نام لیا ہے ان کی مقدار کو اپنے کھانوں میں کم کریں اور سبزیوں کو آپ بڑھا سکیں۔ اکثریت آپ میں سے کافی سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگوں کی ہے جو میں پہلی آپشن دی ہے۔ اس میں سے اکثر وہ کھانے شامل ہیں جن کے اندر پروٹین زیادہ ہوتی ہے، یعنی جو گوشت ہے، مچھلی ہے، دالیں ہیں۔ لیکن پھر آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ آپ کم پروٹین والے کھانے کھائیں، تو صرف اس وجہ سے آپ بچ سکتے ہیں کہ آپ کم پروٹین والے کھانے کھائیں گے، تو صرف اس وجہ سے ہی آپ بچ سکتے ہیں۔ زیادہ یورک ایسڈ سے تو دوستو اس میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے۔
अगर बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाएंगे तो इससे भी आपका जो यूरिक एसिड है बढ़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप जूसेस पीते हैं, जैसे फ्रेश जूस होता है, फलों का रस, यानी आप हनी, शहद आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, या आप मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं, या आप सोडा या इन मशरूबात के अंदर शुगर, चीनी होती है, वो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में अगर आप डाल के खाते हैं, फ्रक्टोज़ के अंदर ये सलाहियत होती है कि आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में आप फल खाते हैं तो फलों के अंदर क्योंकि साथ फाइबर भी होता है और बाकी मिनरल्स और विटामिन्स भी होते हैं, तो वो जो इसके अंदर चीज़ें होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी से आपके जिस्म में नहीं जाती और बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड को नहीं बढ़ाती। तो नेक्स्ट टाइम जो दूसरा ऑप्शन है आपने लेना है कि आप अगर मीठा भी खाते हैं तो आप फलों की शक्ल में खाएं, मिक्स फ्रूट चाट बनाकर खा लें, लेकिन आप जूस की शक्ल में ना लें, मिठाई की शक्ल में ना लें। मीठी चीज़ों से भी यूरिक एसिड तेज़ी से बढ़ता है। वो जैसा कि नाजरीन मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि यूरिक एसिड इसलिए बढ़ता है कि आप बाहर से चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी खाते हैं, और दूसरी वजह ये होती है कि आपके गुर्दे अगर इसको प्रॉपर से निकाल नहीं पाते, जिस तरह आप चाहते हैं कि आपके घर का गंद बाहर चला जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी फेंकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपके गुर्दे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड को आपके जिस्म से निकालें तो आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप नहीं चाहते कि आपके जिस्म में यूरिक एसिड की ज़्यादती हो तो आप एक अलार्म सेट कर लें या ऐसी जगह पर हों जहां पर पानी मुयस्सर हो, तो हर घंटे के बाद कुछ ना कुछ पानी ज़रूर पिएं ताकि मुसलसल आपके गुर्दे जो हैं वो सफाई करते रहें और यूरिक एसिड को आपके जिस्म से बाहर निकालते रहें। तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल यूरिक एसिड को कम करने में इंतहाई मदद देता है। जो लोग कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं उनको ये समझना चाहिए कि कॉफ़ी दो तरीक़ों से हमारे जिस्म में यूरिक एसिड के लेवल को कम करती है। पहला तो ये है कि यूरिक एसिड को कम से कम बनने देती है, और दूसरा कॉफ़ी का इस्तेमाल हमारे जिस्म में यूरिक एसिड को निकालने में बहुत मददगार साबित होता है। तो अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि कॉफ़ी का इस्तेमाल यूरिक एसिड के लेवल को हमारे जिस्म के अंदर कम करता है। दोस्तों, अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को जान लेना, जो मोटापा होता है वो आपके जिस्म में ज़्यादा यूरिक एसिड को पैदा करने का बायस बनता है। तो अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो आज ही अपने डॉक्टर से बात करें और आप एक प्रॉपर किस्म की वो डाइट का आगाज़ करें। डाइट से मुराद खाना कम करना नहीं है, बल्कि अपनी खुराक में ऐसी तब्दीलियां लाएं कि आपके वज़न में कमी आए। आपको अपने डॉक्टर से बात करके इसलिए वज़न को कम करना चाहिए, क्योंकि बढ़ा हुआ वज़न यूरिक एसिड को बढ़ने की वजह बनता है। और जैसे ही आप अपना वज़न कम करेंगे आपका यूरिक एसिड भी कम हो जाएगा। वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, ये शुगर होने से पहले की स्टेज जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, इस स्टेज पर हैं, तो उनके लिए ये बड़ी अहम बात है कि अगर उनको शुगर है या प्री डायबिटीज़ है तो उनके चांसेस यूरिक एसिड बढ़ने के ज़्यादा होंगे। और इस तरह से वो लोग जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है तो उनमें शुगर के ज़्यादा चांसेस होने का डर होता है। अब डायबिटीज़ जो हम कहते हैं, अगर आप सुबह के नाश्ते से पहले आपने अपनी शुगर चेक की है, अगर उसका लेवल 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो आपको शुगर है। अगर आप 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो आपको शुगर नहीं है। लेकिन शुगर फ़र्ज़ करें आपकी जो नाश्ते के बगैर है, अगर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक है तो इसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज़। तो आपने कोशिश करनी है
कि नेक्स्ट टाइम आपको जब भी मौका मिलता है तो नाश्ते के बगैर आप घर में ही चेक कर सकते हैं, लेबॉर्ट्री से जाकर भी चेक करवा सकते हैं कि आपके जो करीब तरीन डॉक्टर हैं इससे भी अपनी शुगर चेक करवा सकते हैं, ताकि आपको मालूम होना चाहिए तो आपका यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और इसी तरह से इनके मसाइल भी ज़्यादा होते हैं। तो शुगर के मरीज़ों के लिए यूरिक एसिड के इस ताल्लुक़ को समझना बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि आप खाने की तमाम ही चीज़ें लोगों की बंद कर देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी तक मैंने आपको बताया है कि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या आप नहीं चाहते कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो मटन है, बीफ है, मछलियां हैं, चिकन है और इसी तरह से जो ये हम गुर्दे, कपूरे, कलेजी खाते हैं तो ये आप कम खाएं और ना खाएं तो फिर सवाल पैदा होता है कि हमें फिर खाना क्या चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको वो खाने चाहिए जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, क्योंकि फ़ाइबर वाले खाने आपके यूरिक एसिड को भी कम करते हैं। इन खानों की मिसालें क्या हैं? मिसाल के तौर पर जो भुने हुए चने होते हैं वो ले लें। इसी तरह से आप बादाम, अखरोट यानी नट्स लें। ब्राउन राइस यानी जो ब्राउन कलर के चावल होते हैं आप वो खाएं। आप जौ का आटा होता है वो खाएं। दलिया खाएं। आप पालक खा सकते हैं, गोभी खा सकते हैं और इसी तरह से आप फलों के अंदर अक्सर आप सेब खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं। तो ये तमाम खुराकें जिनके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, तो आपको खाना भी मिल गया और साथ साथ यूरिक एसिड का लेवल भी कंट्रोल में रहता है। दोस्तों, विटामिन सी का बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि विटामिन सी अभी तक की वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि आपकी इम्यून सिस्टम का एक दोस्त है। विटामिन आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, आपके मुदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर बनाता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना जो विटामिन सी है वो किसी न किसी तरीके से, चाहे तो वो सप्लीमेंट्स हों या कुछ आपको खुराकें बताता हूँ, इनकी मदद से आप इसको ज़रूर प्रॉपर लेवल पर रखें अपने जिस्म के अंदर। इसी तरह से वो लोग जो विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं तो इनमें यूरिक एसिड भी कम रहता है। तो यूरिक एसिड के मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से बात करें, क्या वो हमें विटामिन सी लेना चाहिए या नहीं। आम तौर पर 75 मिलीग्राम से लेकर 125 मिलीग्राम के दरमियान, यानी आप कह लें कि एक दिन में 100 मिलीग्राम अगर आप विटामिन सी लेते हैं तो आपको विटामिन सी की कमी नहीं होगी। जो मैग्नीशियम लिमिट है, यानी 2000 मिलीग्राम से ज़्यादा आपको किसी भी सूरत नहीं लेना चाहिए। अगर आप विटामिन सी की गोलियां नहीं खाना चाहते तो आपके लिए कुछ मैं फल वगैरह बताता हूँ, सब्जियां बताता हूँ जो आप लेंगे जिससे आपका विटामिन सी का लेवल प्रॉपर रहेगा। वो कौन से फल हैं और सब्जियां कौन सी हैं? जैसे कि अंजीर खाएं, आप माल्टे खाएं, अगर आप ग्रेप फ्रूट खा सकते हैं, विटामिन सी का बहुत अच्छा ज़रिया है। स्ट्रॉबेरीज़ ले सकते हैं, अगर आप गर्मा खा सकते हैं, अभी सीज़न नहीं है, वो बहुत विटामिन सी देता है। ये सुर्ख और जो सब्ज़ मिर्च होती है ये विटामिन सी का बेहतरीन ज़रिया है। इसी तरह से टमाटर, सब दोस्तों को पता है कि टमाटर जो हैं वो बहुत ही अच्छा ज़रिया है। वो इस तरह के फल और सब्ज़ियां लेंगे तो ये बहुत ही रिच सोर्सेज हैं वो विटामिन सी का, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कुछ खसूसी किस्म की दवाइयाँ खाते हैं तो इन दवाइयों में भी ये सलाहियत होती है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा देती है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप इनमें से कोई भी दवाई खा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। और साथ ही अगर आपका यूरिक एसिड भी ज़्यादा है
ताकि ये देखा जाए कि क्या इन दवाइयों की जगह पे कोई और दवाई दी जा सकती है। ये कौन सी दवाइयाँ हैं, जैसे कि एस्प्रिन की गोली है, पेशाब आवर दवाई होती है जिनको हम डायोरेटिक्स कहते हैं। विटामिन B3 है जो मल्टी विटामिन के अंदर होता है। इसी तरह से बाज़ औक़ात आपको आपकी इम्यूनिटी को दबाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं जिसे साइक्लोस्पोरिन कहते हैं। इसी तरह से बाज़ औक़ात आपको टीबी की दवाइयाँ देते हुए इसके अंदर होती हैं, वो भी यही काम करती हैं। और बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ जिसमें बेटा ब्लॉकर शामिल है और भी इस तरह की कुछ दवाइयाँ शामिल होती हैं जो आपके यूरिक एसिड को बढ़ा दे सकती हैं। तो ऐसी सूरत में आपके लिए ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से बात करें ताकि ये फ़ैसला किया जा सके कि इन दवाइयों की जगह पे कोई और दवाई दी जा सकती है या नहीं। दोस्तों, ये वो तरीके हैं जिनसे आप अपने जिस्म में यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, कॉफ़ी पी सकते हैं, गोश्त कम खाएं, दालें कम खाएं, सब्जियां और फलों को ज़्यादा खाएं। नाज़रीन, आपको इस चैनल पर इस तरह की मोटिवेट वीडियोस मिलती रहती हैं, तो आप लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।